in agriculture. Today you are writing about what is dryland farming. Dryland farming is practiced in the areas where rainfall is little and the available soil moisture is utilized for doing cultivation. In this, the main crops grown are millets, peas, gram, and some other pulses. Only single crop can be grown in a year. Only single crop can be grown in a year. Now repeat. Any one of you? Elisha? Unmute yourself. Any one of you who is listening? Madhav? Madhav, 10F? Ambika, start speaking. Dryland farming is practiced in dry areas of country like western, northwestern, and east central India. In this type of farming, soil moisture is used to do farming which is available due to very little rainfall. For example, gram, peas, millets are the main crops of this type of farming, and only one type of crop can be raised in this type of farming. Just opposite to this, suppose you are getting a question that what is wetland farming. So in the same manner, you have to write that wetland farming is practiced in those areas where rainfall is sufficient. Okay, this is the first point, that wetland farming is practiced in those areas where rainfall is sufficient. And in the regions of sufficient rainfall, at least 2 crops can be grown in a year. So it is different from dryland farming. In dryland, only 1 crop can be grown in the year. And in wetland farming, where rainfall is sufficient, 2 crops can be grown. And which are the areas? The areas are those parts of India which receive sufficient rainfall. Like northern, northeastern, yes, northeastern India, eastern India, and southern part of India, or western coastal plain of India. All these places which receive heavy rainfall or sufficient. Northwestern. Say again. तो तुम लोग इसको भी लिखना चाहोगे कि सिर्फ ऐसे सुन लिए तो हो गया आइडिया? बोलो. वेटलैंड फार्मिंग मतलब जहाँ रेनफॉल सफिशिएंट होता है और इसमें 2 क्रॉप तो इजीली ग्रो कर लेते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है ना. और ज्यादा रेनफॉल जिसमें चाहिए वैसे क्रॉप ग्रो करते हैं. जैसे एग्जांपल में तुम राइस और जूट लिख सकते हो. राइस और जूट है ना, ये ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है इसमें. फिर एरियाज में क्या क्या लिखेंगे? अगर तुमको रेनफॉल मैप याद है इंडिया का जो 9th में पढ़े थे, तो वो सारे रीजन का नाम लिखोगे. अंबिका बोलो तो कौन से सफिशिएंट रेनफॉल वाले एरियाज हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, southern part of India, western coastal plain, western coastal plain, western Ghat mountains. And in north ये सब लिख सकते हैं. ये भी सब लिख सकते हैं. कोरोमंडल कोस्ट, ये सब भी जो डेल्टा रीजन है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टा रीजन है, वो भी सुटेबल एरियाज हैं. और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी सुटेबल है और पूरा नॉर्दर्न प्लेन सुटेबल है. स्पेशली ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया आर स्पेशली सुटेबल फॉर वेटलैंड फार्मिंग, है ना. मतलब आपको एकदम नॉर्दर्न प्लेन पूरा जितना एरिया कवर करता है वो सब इसमें आ जाएगा. नॉर्दर्न स्टेट्स को छोड़ के, जैसे कश्मीर, लद्दाख, ये सब रीजन को छोड़ते हुए, और तब फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे जल्दी बताओ. Eastern part of India, Coromandel coast of India, deltaic region of India, western coastal plain, western Ghat mountains. नहीं, an example of crops. Ma'am, rice. Attitude. ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है कि हाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ रिलायंट, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया को ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बनाया.
तो तुम ग्रीन रिवॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, है ना? तो तुम यहाँ क्या लिखोगे? इन दिस टेक्नोलॉजी which is available through the green revolution, the farmers use sufficient fertilizers with good facilities of irrigation, right? And they are also using high yielding variety of seeds, HYV seeds, and all other modern equipments of agriculture are used for plowing the field, for threshing, tilling, etc. ठीक है ना? ये एग्रीकल्चर के जितने भी काम हैं, जैसे अगर फील्ड की प्लाविंग करनी है या हार्वेस्टिंग करना है क्रॉप का, या उसकी थ्रेशिंग करनी है, मतलब उसमें से ग्रेन्स निकालना है क्रॉप से, तो ये सारे काम किसके हेल्प से होता है? मशीन टूल्स के हेल्प से होता है, जिसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में तुम कुछ नेम भी लिख सकते हो, जैसे इरिगेशन के लिए पंपिंग सेट, फिर ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर में बहुत सारे इक्विपमेंट हम उसमें ये करते हैं, अटैच करते हैं, जैसे कंबाइन, थ्रेशर, टिलर, हार्वेस्टर, ऐसे बहुत सारे मशीन है जो कि उसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो मॉडर्न टेक्निक है एग्रीकल्चर के, उसमें हम यूज करते हैं। तो ये सारी बातें तुम ग्रीन रिवॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे, जिसमें 4 पॉइंट में अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या क्या हो जाएगा? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, सफिशिएंट इरिगेशन, और ये दूसरा हो गया। और तीसरे में क्या लिखेंगे? केमिकल फर्टिलाइजर्स and different types of manures also, and then yeah, modern techniques and modern equipments. हाँ, modern equipments of agriculture, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमेशा 2 क्रॉप ग्रो करते ही हैं, कम से कम 2 क्रॉप्स जरूर ग्रो करते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये कॉमन सी बातें हैं, जनरल बातें हैं, ये किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखो तो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये क्वेश्चन पहले लिखे थे? नो मैम। हाँ, तो ये लिखो, ये भी एग्जाम में आता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर complementary to each other. Justify the statement. Agriculture and industry are complementary to each other. Close the inverted comma. Justify the statement. Agriculture and industry are complementary to each other. Justify the statement. तो ये जो एग्रीकल्चर लेसन है, इसके फर्स्ट पेज में आ जाओ, फर्स्ट या सेकंड पेज देखें तो वहीं से ये आंसर है। इसके लिए दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री का हेल्प चाहिए, और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर का हेल्प चाहिए, यही ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? Agriculture and industry go hand in hand. In which paragraph it is mentioned? After zooming, see, turn the page of the book. आंसर कहाँ है? आंसर देख रहे हो किताब में? कहीं किसी पैराग्राफ में है? सर्च करो, हम दिखा देते हैं। पेज नंबर 43 मैम। 33 वो 43। हाँ, 43 पेज में। 43 एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस जो लिखा हुआ है ना, उसी में ये भी।
पेज नंबर 43। इसके बाद है ना, देखो तो, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। पेज नंबर 43। Yes, I'm last one. Contribution of agriculture. लास्ट पैराग्राफ, कंट्रीब्यूशन। ओके, जब तब तक तुम लोग लिखना शुरू करो। ये यहाँ पे भी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है सिर्फ, है ना। तो ये आंसर लिखो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तुम हम डिक्टेट करा रहे हैं, लिखो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड। Their development depend on each other. Their Agriculture and industry go hand in hand. Agriculture and industry go hand in hand, full stop. Their development depends on each other. Their development depends on each other. Now write the first paragraph. Agriculture has been modernized since the application of हाँ पैराग्राफ चेंज कर लो। अब पहले एग्रीकल्चर के बारे में लिख रहे हैं और दूसरे पैराग्राफ में इंडस्ट्री के बारे में लिखेंगे। तो पहला लिखो, एग्रीकल्चर हैज बीन मॉडर्नाइज्ड since the implementation of Green Revolution. Agriculture has been modernized since the since application of Green Revolution. implementation. Since the implementation of Green Revolution. implementation के बाद Green Revolution, implementation of Green Revolution. In which Green Revolution के बाद in which many manufactured items are used. Many manufactured items are used to modernize agriculture. मैम used के बाद क्या बोली? To modernize the agriculture. For example, pumping sets, PVC pipes, pumping sets, PVC pipes. For example, हाँ, तुम यहाँ मैन्युफैक्चर्ड आइटम के नाम लिख रहे हो जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है ना। मतलब इंडस्ट्री का एग्जांपल में क्या कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं। तो क्या, जनरेटर्स, पंपिंग सेट्स, बहुत सारे मशीन टूल्स के यहाँ पे नाम लिखो। पीवीसी पाइप्स, ट्रैक्टर्स, हाँ ट्रैक्टर्स, threshers, harvesters, etc. Threshers, harvesters, etc. Along with variety of fertilizers, pesticides, along with variety of fertilizers, pesticides, weedicides, etc. etc. मैम फर्टिलाइजर के बाद Pesticides, weedicides,
पेस्टिसाइड होता है कीड़े मारने के लिए फसल में, यस और मैम। वीडीसाइड्स होते हैं अनवांटेड जो वीड्स निकल जाते हैं घास वस ये सब उसको हटाने के लिए वीडीसाइड। तो ये सब क्या चीज है, ये सारे मैन्युफैक्चर्ड आइटम है जो हमें इंडस्ट्री से मिलते हैं। इतना रीडिंग करो तो सिर्फ एग्रीकल्चर वाला पैराग्राफ। एग्रीकल्चर हैज बीन मॉडर्नाइज्ड, यही वाला ना मैम? हाँ Agriculture has been modernized since the implementation Green Revolution, in which many Green manufactured Revolution, हाँ हाँ item are used to modernize the agriculture. Example: threshers, harvest, etc., along with variety of fertilizers, pesticides, weedicides. हाँ थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, पंपिंग सेट, कुछ और 4-5 नाम लिखोगे है ना वहां पर एग्जाम्पल में कि हम मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स क्या क्या यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। तभी तो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो गया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया। लिखो thus the production of agriculture has increased. Thus the production of agriculture has, एग्जाम्पल के नीचे मैम। हाँ thus THUS, thus the production of agriculture has increased. हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो इंडस्ट्रीज। पैराग्राफ चेंज। हाँ अब इंडस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे कैसे डिपेंडेंट है। लिखो इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। Industries also depend on agriculture for their raw materials. For example, मैम फॉर देयर के बाद क्या बोली है? industries also depend on agriculture. For example, the raw material for industries like Yes. like cotton, मैम हो गया। cotton, textile, cotton, silk, jute textile, jute textiles, sugar, rubber, paper industries, etc. Repeat this. Last paragraph. Industries also depends on agriculture for their raw material. for their raw For example, the raw materials for industries like cotton, silk, jute textiles, sugar, rubber, paper industries, etc. Pratik was speaking. Okay. Yes, ma'am. हाँ ठीक है। तो प्रतीक तुमने लिख लिया ये सेकंड पैराग्राफ कि इंडस्ट्री किस तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से ही मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, वर्ल्ड में जिसका एक अच्छा रैंक है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे। ये सारा कॉटन जो है वो उसको एग्रीकल्चर से ही मिलता है। पेपर इंडस्ट्री, शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सब हमारे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। तो इंडिया के बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं और एग्जांपल तुम लिख ही लिए। पेपर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर का डेफिनेशन ना बहुत ब्रॉड होता है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि क्रॉपिंग करना और क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, इतना ही नहीं है। फॉरेस्ट, फिशिंग, इसमें सब शामिल है, समझ गए। एग्रीकल्चर हैज अ broad meaning because it includes not only the cropping of food items, it also includes
फॉरेस्ट्री, फिशिंग, डेयरिंग, है ना, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री सब इसमें एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है। समझ गए ना? तो इस कहने का मतलब क्या कि बहुत सारे रॉ मटेरियल हमारे इंडस्ट्री के लिए मिलते हैं। इंडिया का जूट टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, रबर इंडस्ट्री, शुगर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका भी एग्जांपल दे सकते हो। तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे। इसलिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना? तो यही है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड और हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आंसर लिख लोगे तुम लोग?